Hello everyone, my name is Akshdeep and I completed my masters from IIT Jammu, and my topic of discussion is coordination compound and specifically about the crystal field theory, which helps to explain how ligand will approach the metal and it affect the energy of a d orbital of a metal, which also helps to determine the color of a coordination complexes, magnetic properties of a coordination complexes, and also about the stability of a coordination complexes. So before I start our main topic, थोड़ा सा जान लेते हैं कि how the lecture will proceed. So first we will discuss about कि coordination compound होते क्या हैं. So about the coordination compounds or coordination complexes. And then we will discuss about why do we need this topic. हमें हमें crystal field theory की mainly जरूरत क्यों पड़ी. We already have a valence bond theory, then why we need this crystal field theory. Need of crystal field theory. And then we will discuss about कि crystal field theory होती क्या है with the example of octahedral complexes. So about the CFT with the help of octahedral complex or octahedral geometry. एंड देन वी विल मूव टू द एप्लीकेशन पार्ट. कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे हम इस टॉपिक से रिलेटेड. सो एप्लीकेशन पार्ट. सो फर्स्ट वी थोड़ा सा जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते क्या हैं. सो लेट अस सपोज वी हैव अ मेटल which is surrounded by molecule or a ion. Suppose these are the ions or molecules, and in coordination complexes we specifically call these molecules or a ion as a ligand. So in coordination इसमें हम इनको ligand कहते हैं specifically in coordination complexes में. So now let us move कि हमें इस coordination complex crystal field theory की why we need this crystal field theory. We already have a valence bond theory, but in valence bond theory we have some limitations which valence bond theory cannot explain few things about the coordination complexes, like color of a coordination complexes and paramagnetic diamagnetic nature of a coordination complexes, and why some ligands why some complexes are in high spin and some are in low spin. So these are few things for which we need crystal field theory. And now let's proceed. थोड़ा सा डी ऑर्बिटल्स के बारे में जान लेते हैं, शेप्स ऑफ अ डी ऑर्बिटल, सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड आवर मेन टॉपिक. सो लेट अस सपोज we have this is our x-axis and y-axis. So for dxy orbital we have the in for dxy orbital the lobes of a d orbitals प्लेन के बीच में लाई करेंगे, नॉट ऑन द एक्सिस. सो ये एक्स वाई प्लेन इन बिटवीन द एक्सिस लाई करेंगे. सो दीज आर लाई इन बिटवीन द एक्सिस. सिमिलरली फॉर द केस ऑफ दी वाई जेड ऑर्बिटल्स, जो हमारे डी ऑर्बिटल्स के लोब होंगे वो इन बिटवीन दी जेड वाई जेड एक्सिस के लाई इन बिटवीन दी वाई जेड एक्सिस लाई करेंगे. सो लेट अस सपोज ये हमारे lobes हैं डी वाई जेड की. एंड सिमिलरली फॉर द केस ऑफ डी जेड एक्स. एंड फॉर द केस ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो हमारे डी ऑर्बिटल्स की लोब्स होती हैं वो इन ऑन द एक्सिस लाई करती है. सो लेट अस सपोज दिस इज आवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज आवर एक्स एक्सिस and this is our y-axis. So lobes are on the axis, not like in a case of in the yz or xz or yz हमारे in between the. इस केस में हमारे axis पर ही लाई करती है lobes. And for the case of the z square orbitals, जो हमारी lobes होंगी वो z axis पर लाई करेंगी.
So this is our torrent ring. So these are the shapes of orbitals, and for the octahedral geometry, we mainly need we need dx square minus y square. इसी डायरेक्शन में जो हमारे लिगेंड्स है या जो आयनोरो मॉलिक्यूल्स है वो इसी डायरेक्शन के इसी एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं मेटल को. एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, जो हमारे इन बिटवीन दी एक्सिस लाई करती हैं लोग, इन सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को हम T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कहते हैं. और जब हमारी लोब ऑन द एक्सिस, जो हमारी डी ऑर्बिटल्स की लोब है वो ऑन द एक्सिस लाई करती है, इनको हम EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कहते हैं फॉर द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल. एंड दिस G मेनली रिप्रेजेंट G रेट. इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री लाई करती है, ये ग्रुप थ्योरी से आता है. सो वी कॉल दिस एज अ G रेट. So now let's move forward about our main topic, crystal field theory. So ये दोनों रहने देते हैं की जरूरत पड़ेगी. So crystal field theory. In crystal field theory, let us suppose this is our metal and these are the these are the orbitals of d orbitals of a metal, and suppose ligands are approaching toward a metal. So इसमें मेनली दो टाइप की इंटरेक्शंस होती है. पहली इंटरेक्शन, सपोज मेटल इज इन पॉजिटिव एंड लिगेंड इज इन नेगेटिव. सो जो हमारी फर्स्ट इंटरेक्शन होती है, प्राइमरी इंटरेक्शन जो होती है वो अट्रैक्शन होती है. इनके बीच में ऑपोजिट चार्जेस लाई कर रहे हैं, ड्यू टू विच ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड ये डोमिनेट करते हैं. इसी के कारण जो लिगेंड है वो मेटल को अप्रोच करता है. एंड ड्यू टू दिस फील्ड ऑर्बिटल्स, फील्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल ऑर्बिटल्स, ये फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी होती है, जिसे हम इस वाले को जो हम हमारी अट्रैक्शन होती है इसको हम प्राइमरी इंटरेक्शन बोलते हैं. प्राइमरी इंटरेक्शन which is responsible for attraction, and this we call it as a secondary interaction. Which is mainly repulsion. So in crystal field theory mainly होता क्या है, जो these electrostatic interaction के basis पर ही हम ये पूरी थ्योरी डेवलप की गई है. देयर इज नो कोवलेंट बॉन्ड और देयर इज नो लाइक हम जनरल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि बॉन्डिंग हो जाती है, ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स. तो ऐसा कुछ इस थ्योरी में नहीं होता. ये थ्योरी फिजिसिस्ट ने दी थी. सो ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक इंटरेक्शन ही हम इस थ्योरी में इन्हीं इंटरेक्शंस के बारे में ही डिस्कस करते हैं और उसी बेसिस पर ये थ्योरी जनरेट की गई है. सो होता क्या है, so let us explain by using octahedral geometry. So let us suppose ये हमारे मेटल के ऑर्बिटल्स हैं. these are the orbitals, these are the d orbitals of a metal. एंड इनिशियली जब लिगेंड जो है वो बहुत दूर है मेटल से, मतलब कोई उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रही, इन दैट केस जो हमारा मेटल होगा वो स्टेबलाइज स्टेट में रहेगा. उसके वो लोअर एनर्जी में रहेगा, ग्राउंड स्टेट कह सकते हैं हम. बट जैसे ही लिगेंड, सपोज लिगेंड पास आने लगेगा मेटल के, सो इनिशियली ये सारे ऑर्बिटल्स एक्साइट कर जाएंगे. So these all orbitals get excited at certain energy level, and when ligand came more closer to the ligand, suppose octahedrally अगर approach कर रहे हैं तो octahedrally जैसे कि let us suppose ये हमारी let us suppose ये हमारी x axis है and ये हमारी y axis है and this is our z axis. सो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल लिगेंड जो होगा वो हर डायरेक्शन से अप्रोच करेगा, इन अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेगा, ड्यू टू विच जो हमारे जो एक्सिस पर लोब्स होंगे वो एक्साइट कर जाएंगे स्लाइटली, एंड जो हमारे इन बिटवीन द एक्सिस होंगे लोब्स जो कि T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स थे जो इन बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे थे dxy, dyz, dzx, वो स्लाइटली लोअर एनर्जी वाली
साइड को चले जाएंगे, सो इट्स लाइक जो हमारे ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स थे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये स्लाइटली हायर एनर्जी में चले गए, एंड जो हमारे T2G सेट वाले ऑर्बिटल्स थे, these are slightly lower in energy, and these orbitals are called as stabilized set of orbitals, and these or set of orbitals we call it as a unstabilized set of orbitals. So, and these borderline we call it as a barycenter. और जो इन दो ऑर्बिटल्स के बीच में गैप होगा, दैट गैप इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसी गैप को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहेंगे, क्योंकि जो लिगेंड के फील्ड के कारण ही ये जो गैप है वो क्रिएट हुआ है। सो वी कॉल इट एज अ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और हम इसको डेलो से भी डिनोट करते हैं। सो डेलो विच वी कॉल इट एज अ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सो और जो हमारा बैरी सेंटर से अबव जाएंगे, उनकी ये ओवरऑल टोटल वैल्यू 1 डेलो होगी। जो बैरी सेंटर से अबव होंगे इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, वो हमारे 0.6 डेलो पर होंगे, और जो हमारे बैरी सेंटर से बिलो वाले ऑर्बिटल्स होंगे T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, वो हमारे 0.4 डेलो, स्लाइटली नेगेटिव में लेते हैं इसकी वैल्यू, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो डिक्रीज हुई है। सो दिस इज द मेन थ्योरी कि हमारा लिगेंड अप्रोच कर रहा है मेटल को, ड्यू टू विच जो हमारे डी ऑर्बिटल्स है इनिशियली ये स्टेबलाइज फॉर्म में थे, स्टेबल डी ऑर्बिटल्स। जब लिगेंड पास आने लगा तो जो सारे और इनिशियली तो सारे ऑर्बिटल्स एक्साइट कर गए, लेकिन जब लिगेंड जो था वो ज्यादा पास आ गया मेटल के, तो वो जो फील्ड था लिगेंड का वो स्पेसिफिकली जो ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स पर था वो ज्यादा लगा, और जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स पे था उन पर नहीं लगा उतना। तो इसी करके जो ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स थी उनकी एनर्जी हाई हो गई, और T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो थी वो लोअर हो गई। अब जो ये एनर्जी गैप है ये भी काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि इसका एनर्जी गैप कब ज्यादा होगा और कब कम होगा। सो लेट अस डिस्कस दैट आल्सो। सो लेट मी इरेज इट, दिस पार्ट रहने देते हैं। सो फैक्टर्स affecting these crystal field splitting energy. So वेरी फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ लिगेंड, कि हमारे जो लिगेंड है उनका नेचर कैसा है। ये मेनली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आता है। लेट अस फॉर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो हायर स्प्लिटिंग करते हैं। जो जैसे कि अगर लिगेंड जो आ रहा है अपकमिंग लिगेंड, उनकी स्ट्रॉन्ग फील्ड से अप्रोच कर रहे हैं मेटल को, जो हमारे जनरली पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं, CO हो गया, CN हो गया, NO हो गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो जो उनके केस में जो ये जो एनर्जी गैप होता है डेलो होता है वो हायर होता है। और बट इन केस ऑफ फाइव डोनर लिगेंड लाइक I नेगेटिव, Cl नेगेटिव, इन ऑल दोस केसेस जो एनर्जी गैप होगा वो कम होगा। तो फर्स्ट फैक्टर तो हमारे लिगेंड के बेसिस पे हो गया, लिगेंड के बेसिस पे। सो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले लिगेंड होंगे वो हायर स्प्लिटिंग शो करेंगे, हायर स्प्लिटिंग। और इस केस में जो डेलो की वैल्यू होगी वो भी ज्यादा होगी, एंड जो वीक फील्ड वाले लिगेंड होंगे, वीक फील्ड लिगेंड, उनके केस में जो डेलो की वैल्यू होगी वो कम होगी, वो कम स्प्लिटिंग करेंगे। सो लो स्प्लिटिंग, जो डेलो की वैल्यू होगी वो भी
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कंपैरेटिवली लो होगी। और जो सेकंड फैक्टर होगा वो नेचर ऑफ मेटल भी डिसाइड करेगा। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है, इन दैट केस वो जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मेटल हैविंग अ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। सपोज एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूँ, लेट मी इरेज दिस पार्ट। So let us consider two example, CONH3 plus 2 CONH3 और 6. So in this case जो हमारा NH3 है वो एक सिग्मा डोनर लिगेंड है। सो दोनों केसेस में लिगेंड सेम है, तो जो हमारा मेजर फैक्टर होगा वो चार्ज के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे। इन दिस केस कोबाल्ट हैविंग अ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू विच इसकी CO+3 वाले कॉम्प्लेक्स की जो डेलो वैल्यू होगी वो भी ज़्यादा होगी कंपेयर टू +2 वाले से। और जो अगला फैक्टर होगा जो डिसाइड करेगा विच इज अगर हम डाउन द ग्रुप डी ऑर्बिटल की बात करें तो इन 3D सीरीज जो हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो मेनली इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिगेंड पे डिसाइड होते हैं। अगर जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 से कम हो, इन दैट केस दिस फैक्टर इज डिसाइडेड बाय द लिगेंड। बट फॉर द केस ऑफ 4D एंड 5D सीरीज सारे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो आई नेगेटिव ही क्यों ना, आई नेगेटिव, F नेगेटिव, कोई भी वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की कैटेगरी में आते हैं इन केस ऑफ 4D एंड 5D सीरीज। सो ये कुछ मेन फैक्टर्स थे। सो वो केसेस डिस्कस कर लेते हैं जिन केसेस में हमेशा ही स्प्लिटिंग ज़्यादा ही होगी। सो दोज केसेस आर मेनली, जैसे कि हम आई ऑलरेडी डिस्कस कि अगर मेटल 3D का हुआ तो अगर हमारा कोबाल्ट CnNO ये पाई एक्सेप्टर टाइप ऑफ लिगेंड होंगे तो these all are always these ligands are always strong field ligand। अगर जो मेटल है वो +4 या उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहा, इन दैट केस ऑल्सो स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होगी। एंड इन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि अगर 4D या 5D और 5D सीरीज का मेटल हुआ, इन दैट केस कोई भी मेटल आ जाए, चाहे वो वीक फील्ड की कैटेगरी में हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड की कैटेगरी में हो या इन बिटवीन लाई करता हो, सारे ही केसेस में जो स्प्लिटिंग होगी वो काफ़ी हाई होगी। सो इन ऑल दीज केसेस डेलो की वैल्यू ज़्यादा ही होगी। सो अगर डेलो की वैल्यू ज़्यादा होने से होगा क्या? सो इससे होगा ये कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइट नहीं कर पाएंगे, वो पहले पेयर्ड होंगे। अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सपोज वी हैव एक एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं सो दैट इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। सो आई विल इरेज दिस थिंग एंड दिस ऑल्सो। So let us consider an example of copper H2O +2. In that case, we have D9 electrons. D ऑर्बिटल्स में इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो उनकी स्प्लिटिंग कैसे होगी? लेट अस सपोज इनिशियली हमारे पास ये था, आफ्टर स्प्लिटिंग Eg और T2G सेट में ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए। तो क्योंकि हमारा जो इस केस में वाटर है, जो हमारा वाटर है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, वो तो इस केस में पेयरिंग नहीं होगी। पहले जो इजीली एक्साइट कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम है। सो इन दैट केस इस तरीके से होगा। बट अगर मैं बात करूं, अगर ये वाटर की जगह कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट नहीं करते। लेट अस सपोज अनदर एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग फील्ड
कोई हाई स्पिन और लो स्पिन का रैंडमली एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. Let me discuss another example. Let us suppose we have कुछ भी अपनी तरफ से कंसीडर कर लेते हैं. D6 high spin and D6 low spin. Suppose T2G. 1 2 3 4 5 6. अगर ये हाई स्पिन का केस है तो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट हो जाएंगे. अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कोई आ गया, सो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट नहीं कर पाएंगे. T2G सारे ऑर्बिटल्स T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में ही लाई करेंगे, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइक इनमें से अगर कोई हम लिगेंड ले रहे हैं या फिर मेटल हमारा 4D या 5D में लाई कर रहा है, सो इन दैट केस हमारा इस टाइप का इस टाइप का स्ट्रक्चर जनरेट होगा. और अगर हमारा कोई वीक फील्ड लिगेंड है और 3D मेटल है, सो इन दैट केस हमारा समथिंग लाइक दिस स्ट्रक्चर जनरेट होगा. सो थोड़े बहुत क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इसी टॉपिक पे बेस्ड. सो नाउ डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस, बट उससे पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं. CFSC कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैलकुलेट करने का एक कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो जैसे कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होती है हमारी T2G. सो दिस इज आवर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी. सो इसमें जो हमारा N T2G है, मतलब हमारे जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो आ जाता है. और NEG का मतलब हमारे EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन. Suppose we have chromium H2O 6 plus 2. So in this case, chromium has D4 electrons in plus 2 oxidation state. So अगर हम इसका क्रिस्टल फील्ड डायग्राम ड्रॉ करें, 4 electrons at orbitals get split into T2G and EG. 1 2 3 4. अब हमारा जो वाटर है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है. सो इन दैट केस हमारी पेयरिंग नहीं होगी. जो इन दोनों के बीच में गैप है वो कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली एक्साइट होके EG में एक्साइट हो सकता है इजीली, मतलब. सो हाउ वी कैलकुलेट CFSC इन दिस केस. सो CFSC का फॉर्मूला, as I already discussed, number of electrons in T2G set, which is 4, and from here we know कि जो बैरी सेंटर से डाउन जाने पे इसकी वैल्यू 0.4 डेलो होती है एंड इसकी वैल्यू 0.6 डेलो होती है. सो 3 into minus 0.4 डेलो plus 1 into 0.6 डेलो, which is about to be minus 1.2 डेलो plus 0.6 minus 0.6 डेलो. सो ये हमारी CFSC की वैल्यू आ गई. कुछ न्यूमेरिकल्स में हमको डेलो की वैल्यू गिवन होती है सेंटीमीटर इनवर्स में, एंड हमको CFSC की वैल्यू फिर निकालनी होती है. सो हम डायरेक्टली डेलो की वैल्यू पुट करके उसमें कई बार वो SI यूनिट के बेसिस पे क्वेश्चंस हो जाते हैं. तो उस केस में हमको सेंटीमीटर इनवर्स को किलो जूल
किलोजूल पर मोल में कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन पे मेनली वो क्वेश्चंस होते हैं। सो उन क्वेश्चंस को भी हम ऐसे ही अप्रोच कर सकते हैं। हमको वो इस डायलो की वैल्यू कुछ सर्टेन गिवन होगी, उस बेसिस पर हम वो वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। एंड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया, दैट इज पेयरिंग एनर्जी। सो पेयरिंग एनर्जी वैसे जनरली कम ही क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन फिर भी कई बार अगर देखने को मिल जाए तो हम वो वाले क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ let us take another example, or yeah. So let us again consider uh, d6 low spin and d6 high spin cases of these two. So 2 3 4 5 6. Sorry. So these two questions. So in case of low spin, all electrons are lie in T2G set, and in case of high spin, electrons get excited and 4 electrons are lying in T2G set and 2 orbitals. So in such questions, अगर हम CFSE calculate करें by using our this formula, so 6 into 0.4 del plus 0.0 into 0.6 del, which is coming out to be minus 2.4 del. And अगर इस केस में देखें हम CFSE, so 4 into minus 0.4 del plus 2 into 0.6 del, so which is coming out to be minus 1.6. And so इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी minus 0.4 del. बट इन दैट केस इन फ्यू क्वेश्चंस अगर हमको क्वेश्चंस में पेयरिंग एनर्जी के फॉर्म में गिवन है, सो पेयरिंग एनर्जी निकालने का सिंपल सा मेथड होता है कि आफ्टर स्प्लिटिंग हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में जा रहे हैं, माइनस जब वो स्प्लिट नहीं हुए थे ऑर्बिटल्स तब कितने पेयर्ड थे। फॉर एग्जांपल इन दिस केस हमारे 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, एंड बिफोर स्प्लिटिंग हमारे एक ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स था। सो इन दैट केस वी हैव 2 पेयरिंग एनर्जी। सो इसके साथ में प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी गिवन होता है। बट इन दैट केस हाई स्पिन के केस में अगर हम देखें तो हमारा बिफोर स्प्लिटिंग ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, एंड आफ्टर स्प्लिटिंग भी हमारा बस एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो 1 आफ्टर स्प्लिटिंग माइनस बिफोर स्प्लिटिंग, सो विच इज 0 पेयरिंग एनर्जी। सो इसके साथ कुछ नहीं गिवन होगा, सिंपली ये ऐसे ही गिवन होगा, बट इन दिस केस हमको 2 पेयरिंग एनर्जी गिवन होगी। सो इस टाइप के भी क्वेश्चंस अगर आ सकते हैं तो वो डेफिनेटली आप ये भी देख सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर उसमें पेयरिंग एनर्जी गिवन है तो उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। सो दिस वाज द होल अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये बेसिक आइडिया इंट्रोडक्शन टाइप था। हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत जाना, उसकी बेसिक अप्रोच जानी। दिस वाज द होल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।